اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ شہر سری نگر ریاست جموں کشمیر کا گرمائی دارالخلافہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1584 میٹر اونچائی پر واقع ہے۔ کبھی یہ 7 پلوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن اب آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے ان پلوں کی تعداد 12 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دریائے جہلم سری نگر شہر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے جانکاری ملتی ہے کہ 3 صدی قبل مسیح زبرون پہاڑی کے دامن میں اس شہر کو بسایا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں وسعت لائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ شہر سری نگر کو اپنا نام پانریٹھن کے اسی مندر سے ملا ہے۔ اس بات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر سری نگر اس مندر کے آس پاس سے آباد ہونا شروع ہوا ہوگا۔ آج شہر سری نگر پورے ملک میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ڈل اور نگین جھیلیں ہیں، شالیمار، نشاد، ہارون، چشم شاہی اور حال ہی میں بنایا گیا گل لالہ کے باغ ٹیولپ گارڈن کے نام سے مشہور باغات ہیں۔ شہر سری نگر ناؤں کی بستی ہے، کشمیری صنعت و حرفت اور دستکاری کا گھر ہے۔ یہ پیروں، فقیروں، سنتوں اور سادھوؤں کی نگری ہے۔ یہاں کے صدیوں پرانے مندر، یہاں کی تاریخی مسجدیں اور خانقاہیں، یہاں کے گرودوارے اور یہاں کے چرچ عوام کے آپسی بھائی چارے اور محبت کی بے مثال کہانیاں دہراتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے بھی شہر سری نگر اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں اردو زبان کو پہلی بار اپنی شناخت اور پہچان مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور اقتدار میں ملی۔ یہ تقریباً 120 برس قبل کی بات ہے، جب اردو کو ریاست میں سرکاری زبان کا درجہ عطا ہوا۔ تب سے ہی اردو زبان و ادب کی کشمیر سے انمٹ وابستگی رہی ہے، اور آج اردو ریاستی آئین کے پس منظر میں یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اکبر نے کشمیر پر قبضہ کیا تو اس زمانے سے اردو کا تعلق کشمیر سے ہو گیا۔ اردو مغل سپاہیوں کی اپنی زبان تھی، اور نتیجے کے طور پر جب وہ یہاں کشمیر میں آئے انہوں نے اپنی زبان کو یہاں استعمال کیا۔ تو بعد میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں تو یہ حکومت کا یہ آرڈر ہوا کہ اردو کو عدالتوں کی زبان اور سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جائے، اور جو دفتری فائلیں ہیں ان میں اردو میں ہی احکامات لکھے جائیں۔ اردو کا زیادہ چلن جو ریاست میں ہوا وہ جموں سے ہوا۔ جموں سیالکوٹ کے نزدیک تھا، لاہور کے نزدیک تھا، اور وہاں شاعر وغیرہ ہوتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ وہاں مشاعروں کا رواج شروع ہوا۔ مسز انی بنسل نے یہاں ایک کالج قائم کیا، سری پرتاپ کالج جو ہے یہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو اس میں انگلش بھی ہونے لگے، بعد میں اس میں اردو کا بھی وہ ایک ڈپارٹمنٹ کھولا گیا، اردو بھی اس میں پڑھانے لگے۔ تو نتیجے کے طور پر یہاں کے اسکولوں میں اور باقیوں میں اردو پڑھانے لگے۔ اور جب ایسا ہوا کہ ایک زمانہ آیا 1958 میں، تو یہ اس کو جموں کشمیر کی زبان کے طور پر اردو کو درجہ دیا گیا۔ جو جموں کشمیر کا آئین بنا اس میں اردو کو سرکاری زبان کا اور یہاں کی ریاست کی زبان کا درجہ دیا گیا۔ سرکار کی سطح پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سرکاری زبان ہے یہاں کی، لیکن جب یہ آپ دیکھیے کہ آپ ایوان میں جائیے، قانون سازی کے ایوان میں جائیے، تو وہاں پہ زیادہ فائل جو آپ کو ملے گی وہ انگریزی میں ملے گی۔
क्वेश्चन आवर में सवालात तो उर्दू में आ जाते हैं। वो मेम्बरान जो असम्बली मेम्बरान जो है या कौंसिल के जो मेम्बरान हैं, उनके जो सवालात हैं वो तो उर्दू में काफ़ी उनको वो तो दिखा हुआ है और कुछ नहीं है। बाकी जो रिप्लाइज़ होते हैं वो सारा कुछ अंग्रेज़ी में होता है। इसी तरह से जितना भी वहाँ जितनी भी कार्रवाई हो जाती है, रिपोर्टर्स वहाँ पे जो हैं वहाँ कानून साजिया में, हम तो वही का ज़िक्र पहले करेंगे कि तो वहाँ पे तो वो जो रिपोर्टर्स है वेल में होते हैं, वो तो उर्दू में तहरीर करते हैं, रिकॉर्ड जो उनको रखना होता है, लेकिन ज़्यादा बिज़नेस तो अंग्रेज़ी में होती है वहाँ। सरकारी ज़बान होने के नाते यहाँ के दफ्तरों में इस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि अब अंग्रेज़ी काफ़ी गलबा हासिल कर रही है। इसी तरह स्कूल कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी में देखिए इकबाल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, इसी तरह आप देखिए अदालत में वहाँ पे उर्दू में ही काम होता है, मासिवाई जजमेंट्स के जो कि अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं उर्दू में, तमाम इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, बेल एप्लीकेशंस, ड्राफ्टिंग वगैरह सारी उर्दू में होती है, एविडेंस उर्दू में ली जाती है। रियासत जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद रियासत है जहां प्राइमरी सतह से यूनिवर्सिटी सतह तक उर्दू पढ़ाने के माकूल इंतजामात किए गए हैं। यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू निसाब तालीम का एक हिस्सा है। उर्दू न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में बूदोबाश रखने वाली मुख्तलिफ ज़ातों, नस्लों, कबीलों और लिसानी ग्रोहों के दरमियान एक राब्ते का काम अंजाम दे रही है, बल्कि ये रंगारंग सकाफती और तहजीबी शनाख्तों, तमद्दुनी असासों, मजहबी अकीदों और मजमूई तौर पर बर्र सगीर में रहने वाले तमाम लोगों के जज्बात और एहसासात की आईनादार है। रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले शोरा और उदबा ने तारीख़ के हर दौर में उर्दू ज़ुबान को अपने फ़िक्र फ़न का वसीला इजहार बनाते हुए इसे खून जिगर पिलाया है। बतौर ख़ास यहाँ के शोरा उदबा ने इसको इजहार की ज़बान का दर्जा अता किया है। इसके आसार अगर हम ढूंढने बैठेंगे तो उसी दौर में मिलते हैं जो इंशा का दौर है, जो मुसफ़ी का दौर है, जो इल्हाम गोई का दौर है, जिसमें उर्दू शायरी में नए नए तजुर्बात हो रहे थे। कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू शायरी के आसार सही मानों में हमें 47 के बाद मिलते हैं, जिसमें हमें शाहज़ोर कश्मीरी मिलते हैं, मीर गुलाम रसूल नाज़ुकी साहब मिलते हैं, दाऊद बानहली मिलते हैं, फ़ाज़िल कश्मीरी साहब मिलते हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान को बाज़ाब्ता अपने इजहार की ज़बान बनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसी तरह एक और अहम ये इंस्टीट्यूट है, इकबाल इंस्टीट्यूट। वहाँ अगरचि वो पहले इकबाल चेयर था, बाद में उसको इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, और वहाँ आप देखेंगे उर्दू के मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ इकबाल से है, इकबाल से के साथ नहीं भी है, और उन पे भी रिसर्च हो रहा है। इस तरह उर्दू का काम जितना कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो रहा है इस वक्त, मेरे ख़्याल में वो लायक सताइश है। शहर श्रीनगर में उर्दू किताबों से भरपूर सजी सजाई दुकानें नजर आती हैं। कुतुब फरोशों की भरमार है। इनके यहाँ हर मौजू पर किताबें दस्तयाब हैं। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गालिबन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा और तालबात हर साल उर्दू में एमए कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो शोबा उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद दोनों सेशन मिला करके तकरीबन 200 होते हैं। 50 के करीब हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। और अगर हम फासलाती निज़ाम तालीम को, कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट को अगर हम शामिल कर लें, जिसके कई सेंटर्स इस वैली में जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं, तो उर्दू में एमए करने वालों की तादाद हज़ारों से भी तजावुज़ कर जाती है। दूसरा मसला जो ये है कि कश्मीर में जो उर्दू अदब लिखा जा रहा है उसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे उर्दू मरकज़ों से क्या ताल्लुक़ है। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो ये बात बड़े फ़ख्र के साथ कही जा सकती है कि उर्दू में शायरी में और नस्र में जितनी भी असनाफ़ हैं
उन तमाम असनाफ में कश्मीर में उर्दू में लिखने वाले पहली सफ़ में अपनी जगह बना चुके हैं। और एक ख़ास बात यह है कि उर्दू कश्मीर में रहने वालों की मादरी ज़बान नहीं है, ये इक्तसाबी ज़बान है। कश्मीर के लोगों की मादरी ज़बान या तो कश्मीरी है या डोगरी है या पहाड़ी है या बल्ती है। इसके बावजूद जिस मोहब्बत से और जिस खुलूस के साथ सदियों से रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने उर्दू ज़बान और अदब को अपनाया है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये सवाल बार बार किया जाता है और हर इलाके में किया जाता है कि उर्दू का मुस्तक़बिल क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसका कोई ख़ास इलाका नहीं है, ये किसी इलाके तक महदूद नहीं है। और जैसा कि हमने अभी कहा कि कश्मीर के लोगों ने सदियों से इस ज़बान को बड़ी मोहब्बत से अपनाया और इसको परवान चढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम कश्मीर में उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है, क्योंकि उर्दू सिर्फ़ यहाँ की बोलचाल की ज़बान नहीं है, यानी लिंग्वा फ्रैंका नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के लोगों की इल्मी ज़बान है, राब्ते की ज़बान है, दीनी ज़बान है, तहज़ीबी ज़बान है, सहाफ़ती ज़बान है। और इस ज़बान को छोड़ना गलत होगा। अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो ये बात गलत होगी, क्योंकि कश्मीर के अवाम को कश्मीर के दुख और दर्द को दुनिया तक पहुंचाने का जो वसीला है ज़बानों के हवाले से, वो उर्दू ज़बान है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की इकबाल लाइब्रेरी शोबा इकबालियात का एक अहम हिस्सा है। शोबा इकबालियात का क़याम उर्दू ज़ुबान व अदब के साथ साथ अल्लामा इकबाल की कश्मीर से वाबस्तगी की यादें ताज़ा करता है। अल्लामा इकबाल का कश्मीर से बराह रास्त ताल्लुक़ रहा है और इन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ यहाँ याद किया जाता है। आज़ाद साहब ने अपने वक्त में उर्दू की बड़ी खिदमत की, कश्मीर की खिदमत की। उनकी किताब इकबाल और कश्मीर में समझता हूँ, इकबाल और कश्मीर के रिश्ते को वाज़ेह करने और दुनिया तक पहुँचाने के लिए पहली पायनियरिंग किताब साबित हुई। अब इस मौजू पर तकरीबन दर्जन के करीब किताबें निकल चुकी हैं, जिनमें हज़रत अल्लामा के फ़र्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब का एक बड़ा हिस्सा भी है, ज़िंदा रूद का। लेकिन इस काम का आगाज़ प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद की किताब से ही हुआ, इकबाल और कश्मीर। तो इकबाल शिनासी जो और इकबाल परस्ती की हद तक जो चली गई, आज़ाद का सबसे बड़ा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टीशन हो चला था। उससे पहले इकबाल ने गुनगुनाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसितां हमारा, और हिंदी हैं हम वतन हैं। और फिर सिफाल हिंद से जामो आग पैदा कर। फिर इकबाल मैं असल का सो मनाती, आबा मेरे लातियों मनाती। फिर जब वतन तकसीम हो गया, ख़याल हुआ कि साहब इकबाल भी तकसीम हो गया। आज़ाद का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हिंदुस्तान में रहकर ये है, उसने कहा फ़िक्र और दानिश्वर, शायर उसके नग़मे उस सरहदों में बांटे नहीं जाते। अगर इकबाल आफाकी शायर है तो सरहदें उसको रोक नहीं सकती। और इस सिमत में इकबाल के बारे में हमको शऊर देना, हमको बेदार करना, हमारी पीढ़ी तक आते आते या अपने मास्टरीन को बेदार करना इकबाल की अज़मतों के बारे में, उसकी रेलेवेंस के बारे में, ये जगन्नाथ आज़ाद का ही हिस्सा है। इस मामले में वो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 1974 की बात है कि श्रीनगर में इकबाल नुमाइश मुनक्कद हुई। इकबाल नुमाइश में ज़ाहिर है कि वो तरतीब दी हुई थी प्रोफेसर आज़ाद की ही। उन्होंने उसमें वो तस्वीरें वग़ैरह ज़बरदस्त मेहनत करके हासिल की थी। सारी ज़िंदगी इकबाल की सामने आ जाती थी। मैं कल्चरल एकेडमी का सेक्रेटरी था। मैंने इस्तकबालिया ख़तबा पढ़ा, आज़ाद साहब बोले, दूसरे लोग भी बोले, और फिर शेर कश्मीर ने अपनी बड़ी उस मशहूर मारूफ तकरीर में कहा
کہ جب اقبال کے آخری دن تھے تو میں ان کے پاس گیا تھا. میں نے انہیں درخواست کی کہ آپ کشمیر تشریف لائیں ہماری دعوت پر، مگر علامہ اقبال کے کشمیر کے داخلے پر اس وقت کی حکومت نے، مہاراجوں کی حکومت تھی، انہوں نے پابندی لگا دی، لہذا وہ نہیں آ سکے. تو انہوں نے یہ کہا مجھے یہ نمائش دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جو بات زندگی میں نہیں کر سکے حضرت علامہ اقبال، وہ زندگی کے بعد، اپنی موت کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے اور وہ ہماری دعوت پر کشمیر تشریف لائے ہیں. ایک ایسے مشاعرے کا انعقاد ہو جہاں ہماری خواتین شعراء اپنا کلام پڑھیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کے اہتمام میں کامیاب ہو گئے ہیں. بہت دنوں سے میں چپ ہوں، سبب نہیں معلوم. چپ ہوں سبب نہیں معلوم، اداس ہوتے ہیں اس طرح کب نہیں معلوم. اداس ہوتے ہیں اس طرح کب نہیں معلوم. کہا تو ہے کہ اتاروں گا سورج آنگن میں، کہا تو ہے کہ اتاروں گا سورج آنگن میں، وہ صبح ہوگی کہ دن یا کہ شب نہیں معلوم. کشمیر کی ادبی تاریخ میں خواتین پوری شد و مت کے ساتھ حصہ لیتی رہی ہیں. ماضی میں بھی یہ خواتین اپنی اعلیٰ ادبی تخلیقات کے پس منظر میں نام اور مقام پا چکی ہیں. آج بھی ریاست کی بہت ساری خواتین قلمکار اپنے قلم کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو چکی ہیں. ان میں شاعرات بھی شامل ہیں اور افسانہ نگار بھی. چھینے ہوئے لمحوں کا حساب دے دو، تمہارے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں. تمہارے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں، جب کچھ نہیں سراپا عذاب دے دو. کشمیر میں اردو غزل کا اچھا خاصا چلن ہے اور یہاں کے شائقین اردو غزل کو خوب سراہتے ہیں. شہر سری نگر میں ریاستی کلچرل اکیڈمی کا صدر دفتر بھی ہے. ثقافت، تمدن اور زبانوں کی آبیاری اور فروغ اکیڈمی کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور جب سے کلچرل اکیڈمی وجود میں آئی ہے 1958 سے، تب سے یہاں اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے برابر کام ہو رہا ہے. بلکہ جب اکیڈمی وجود میں آئی تو یہاں سب سے پہلے جو میگزین سٹارٹ ہوا، شیرازہ اس کا نام ہے، تو وہ اردو میں ہی شروع ہوا. اردو کے ساتھ ساتھ جو ہماری مقامی زبانیں ان میں بھی. تو تب سے ہم اردو کی ترقی کے لیے جو اکیڈمی ہے اس کا یہ کام ہے کہ ہم اردو لکھنے والے جو ہمارے ادیب ہیں یا ہمارے شعراء کرام ہیں، ان سب کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہم تب سے مہیا کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا جو کلام ہے اسے ہم اس شیرازے میں شائع کرتے ہیں، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو، یا بہت سارے لوگ ہیں جو نثر میں لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، یا تحقیقی قسم کے مضامین جو لکھتے ہیں، وہ سارے اردو میں ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جب اکیڈمی کے ہمارا ادب کے نام سے ایک انتھالوجی ہے وہ ہم برابر شائع کر رہے ہیں. یہ تو پہلا کام ہے. دوسرا کام ہم نے اردو کے حوالے سے یہ کیا ہے، جیسا میں نے عرض کی کہ پوری ریاست کے اندر جتنے بھی مطلب لوگ اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم یہاں مہیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو شعراء کرام ہیں یا ادیب ہیں ان کو ہم برابر سہولیات فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں اردو کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ان کو ایک انٹریکشن کا موقع فراہم کرتے ہیں.
अकादमी में खत्ताती या खुशनवीसी का बाज़ाब्ता दर्स दिया जाता है, जिसमें ख्वाहिशमंद तलबा 3 साला कोर्स करके उर्दू की खत्ताती के फन से आरास्ता होते हैं। देखिए, हमारी वादी में लगभग 142 अखबारात, जिनमें जरीदे भी है, माहनामे भी हैं, वीकलीज़ भी है और डेलीज़ भी है, निकल रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद उर्दू में ही निकलती है। कम से कम 119 जरीदे उर्दू में, जिनमें डेली न्यूज़पेपर्स भी है, हफ्तेवार भी है, माहनामे भी है। ये सब यहाँ से बाज़ाब्ता इनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है और ये निकल रहे हैं। उर्दू की बका के लिए हमारा डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्टों में या वादी में मुशायरे, डिबेट्स, वो एक प्रोसीजर है, एक बिल्कुल कॉमन रूटीन है कि ऐसे प्रोग्राम हमारे जो डिपार्टमेंट अंजाम दे रहा है। बाकी उर्दू के बारे में जितना कुछ होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारी सरकारी ज़बान है। जो हमारा काम, जो ऑफिस रूटीन वर्क होनी चाहिए थी, वो उर्दू में ही होनी चाहिए थी। श्रीनगर में सहाफ़ती जिद्दोजहद का आगाज़ 1922 में हुआ, जब उर्दू अखबार वितिस्ता जारी किया गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोहिनूर यहाँ से शाया होने वाला पहला अखबार था। इसके बाद अखबार हमदर्द की इशाअत अमल में आई। हमदर्द के साथ साथ या कुछ देर बाद जो अखबारात शाया होने लगे, उनमें सदाकत, हकीकत और मारतन वगैरह काबिल जिक्र हैं। पहले अखबारात लिथोग्राफी के जरिए शाया होते थे, लेकिन अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है। अब तकरीबन सारे अखबारात कंप्यूटर के इस्तेमाल से शाया होते हैं। अब तो श्रीनगर से रंगीन अखबारात भी शाया होने लगे हैं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे कि श्रीनगर और उर्दू का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहूँगा कि श्रीनगर में जितने भी अखबारात निकलते हैं, मैं उनकी तादाद से तो खुश हूँ, लेकिन जहाँ तक उनके मियार का ताल्लुक़ है, उस मामले में बहुत मायूस हूँ। मुझे श्रीनगर में उर्दू का माजी बहुत शानदार दिखाई देता है, लेकिन इसका मुस्तक़बल मुझे बहुत तारीख नज़र आता है और मुझे बहुत तशवीश है कि शायद ये ज़ुबान ज़्यादा देर तक संभल न पाएगी। मैंने हमेशा अपने एडिटोरियल्स में, अपने इस फ़न में, जिसको कार्टून कहते हैं, ये उजागर करने की कोशिश की है कि उस ज़ुबान को अगर बचाना है तो इसको सरकारी सतह पर ऐसी वो पोजीशन दी जाए, ऐसा दर्जा दिया जाए कि ये आगे बढ़े। हम रेडियो कश्मीर श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। रेडियो टेलीविज़न ऐसा एक ज़रिया है, एक ऐसा इदारा है, दोनों को मिलकर अगर आप देखें, कि जिसने तरवीज में उर्दू की, जिसने इसके फ़रोग़ में बुनियादी किरदार अदा किया है। रेडियो में जब हम ज़बान बोलते हैं, ज़ाहिर है कि ज़्यादा प्रोग्राम उर्दू में होते हैं, अनाउंसमेंट्स उर्दू में होती हैं, कश्मीरी में भी होती बेशक, लेकिन ज़्यादा अमल दखल जो है जम्मू में भी, कश्मीर में भी, यहाँ तक कि लद्दाख में, डोडा में, जहाँ जहाँ इसके स्टेशंस हैं, वहाँ पर अक्सर प्रोग्राम उर्दू ज़बान में होते हैं। तो ये बहुत बड़ा ज़रिया है यहाँ के नौजवानों को रोज़गार हासिल करने का। तो इस रोज़गार को हासिल करने की कोशिश में वो ज़बान की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर की तिजारती नशरियाती सर्विस है, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कोई लाजवाब होगा, कोई बेमिसाल होगा, हमें किससे है मोहब्बत, तुम्हें नाम क्या बताएं। पेश है
फिल्म नाम से ये नगमा आवाज पंकज उदास की है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। 50% से ज़्यादा जो है वो रेडियो और टीवी दोनों में प्रोग्राम उर्दू में जा रहा है। और जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, ड्रामे हैं, सीरियल्स है, या जितने भी प्रोग्राम जो फेस्टिवल्स यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सब जितने भी प्रोग्राम हैं हम उर्दू में कर रहे हैं। तो इसलिए उर्दू की यहाँ पर फ्यूचर जो मुस्तकबिल जो है उर्दू का बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान, और जहाँ तक इस ज़ुबान का ताल्लुक़ है, इस ज़ुबान के हवाले से मीडिया ने भी शुरू से ही, राइट फ्रॉम द डे वन, जब यहाँ पे टेलीविज़न शुरू हुआ था, तो उन दिनों से यहाँ पे उर्दू प्लेस हुआ करते थे। और दूसरी बात ये है कि इस ज़ुबान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो ये है कि जब हमने शुरू में कश्मीरी प्लेस किए, व्हेन आई शिफ्टेड टू द उर्दू लैंग्वेज, जब मैंने उर्दू में प्लेस किए, उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे प्लेस जो हैं दिल्ली से, जलंधर से, बम्बई से और भी बहुत सारे स्टेशन से टेलीकास्ट होने लगे, और मेरी एक पहचान बन गई बाहर के स्टेशंस में। तो वजह क्या है? वजह है वो प्लेस जो थे वो उर्दू ज़ुबान में थे, क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान जो है वो हमारे इसी वैली तक महदूद है। जब आप कोई चीज़ उर्दू ज़ुबान में करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप बाहर के लोग भी आपको जानते हैं। और मैंने मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शंस अभी तक जो की हैं, मैंने भी कोशिश यही करी है कि मैंने कहा यहाँ के जितने भी लोग हैं कश्मीरी सीरियल्स वगैरह तो करते ही रहते हैं, मैं थोड़ी सी खिदमत करूँ, तो मैंने मैक्सिमम सीरियल्स अपने उर्दू में ही किए। कश्मीर में स्टेज ड्रामा की अपनी अहमियत है। अगरचे 20वीं सदी से भी नाटक कंपनियों की बुनियाद पड़ चुकी थी और यहाँ स्टेज ड्रामा पेश करने की उमंग अवाम में पैदा हो चुकी थी, लेकिन थिएटर की तहरीक को आगे बढ़ाने में इप्टा ने एक खास रोल अदा किया और कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर से ड्रामे लिखे और स्टेज होने लगे। श्रीनगर में आज भी उर्दू स्टेज ड्रामे खेले जाते हैं। इसलिए थोड़े अंगारे लेकर आई। तू फिर उस पेशेंट के पास गई? परसों की बात भूल गई, फिर चली गई? वो बीमार है। बीमार है? मर तो नहीं गई वापस साथ? हुस्न दिलकशी का शहर श्रीनगर रोज बरोज अपने अकीदतमंदों के दिलों में जगह बना रहा है। यहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले अनगिनत उर्दू के शैदाई इस जुबान को फरोग देने में हमतन मसरूफ हैं और उर्दू दिन बदिन तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है। तुम घर चली जाओ। रुक जा आफ्ताब खान, मुझे बात करने दे। सारा, क्या ये सच है कि तुम शाहदीन के बेटे नूरदीन के साथ शादी करना चाहती हो? तुम अपने अहद का विरसा तो खो चुके हो तमाम, जो बच सके तो ये उर्दू ज़बान रख लेना।